Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, these are the books of your sociology class 11th. Children, first book is Introducing Sociology and second is Understanding Society. Here are the two books. This is the NCERT book and this book is So children, what is sociology? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सोशियोलॉजी क्या है, समाज शास्त्र क्या है. So start writing from here. The word sociology is derived from the Latin word socius, that means companion, and the Greek word logos, that means study of, meaning the study of companionship. While this is a starting point for the discipline, sociology is actually much more complex. तो चिल्ड्रन, सोशियोलॉजी जो वर्ड है, समाजशास्त्र जो वर्ड है, वो लैटिन वर्ड सोशियस, दैट मीन्स कंपेनियन, मीन्स साथी, और ग्रीक वर्ड लोगोस मतलब कि स्टडी ऑफ से मिलकर के बना है. इसका अर्थ है इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी कंपेनियन, जितने भी साथी हैं, उन सब की स्टडी करना ही क्या है, सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है. यदि सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो व्हाट इज सोशियोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स? सो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड सोशल कॉजेज एंड consequences of human behavior. Sociologists investigate the structure of groups, organizations and societies and how people interact within these contexts. तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर और जो समाज में सोशल चेंजेस होते हैं उनका कारण और किस तरह से वो चेंजेस होते हैं, उन सभी पर बेस्ड शास्त्र है. सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं उनके सभी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं. सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, क्या किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, क्या एक दूसरे से वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. चिल्ड्रन, कुछ हम फेमस सोशियोलॉजिस्ट को देख लेते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट फेमस कौन कौन से रहे हैं. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे एंड ही वॉज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी. He was the French philosopher and he was born in 1798 and died in 1857, and he is known as the founder of the sociology. Now you can see here, this is the picture of Karl Marx. He was the German political economist and sociologist, and he was born in 1818 and died in 1883. He was one of the most famous figure in the founding of sociology. Now he is Emile Durkheim. You can see he was the French sociologist. Max Weber, German economics professor Max Weber, and also the sociologist. Children, I will give you notes and I will explain the chapter in short here. Start writing from here. These are the notes for the revision for the chapter. So let's start writing from here. Sociology, this is the introduction. So right here, sociology studies human society as an interconnected whole and how society and the individual interact with each other. One of the tasks of sociology is to unravel the connection between a personal problem and the public issue. It tries to understand that the individual in modern times belong to more than one society and how societies are unequal. Thus, sociology as a systematic study of society, distinct from philosophical and religious reflections, as well as our everyday common sense observation about society. This distinct way of studying society can be better understood if we look back historically at the intellectual ideas and material context within which sociology was born and later grew.
तो चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है इतने पॉइंट्स। और सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी जो है सोसाइटी का अध्ययन है कि किस तरह से समाज में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और किस तरह से जो ग्रुप्स हैं और इंडिविजुअल है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटी के जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो क्या हैं, और सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं। ये सारा हमें इस चैप्टर में देखना है। सोशियोलॉजी यही होती है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। C. Wright Mills rests his vision of the sociological imagination precisely in the unraveling of how the personal and public are related. The sociological imagination enables us to grasp history and biography and the relations between the two within society. The most fruitful distinctions with which the sociological imagination works in between the personal troubles of the milieu and the public issue of social structure. Troubles occur within the character of the individual and within the range of his immediate relation with others. They have to do with his self and with those limited areas of social life of which he is directly and personally aware. Issues have to do with matters that transcend these local environments of the individual and the range of his inner life. The facts of contemporary history are also facts about the success and the failure of individual men and women. When a society is industrialized, a peasant becomes worker, a feudal lord is liquidated or becomes a businessman. Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. तो चिल्ड्रन जो सी राइट मिल्स थे उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी जो है वह इमेजिनेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इमेजिनेशन के द्वारा सोशियोलॉजी की स्टडी नहीं की जा सकती है, बल्कि सोशियोलॉजी जो है वो फैक्ट्स और एविडेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सपोज़ क्योंकि समाज जो होता है, समाज की जो मानसिकता होती है, समाज में जो सिस्टम चालू कर दिया जाता है, समाज जिस तरह से लोगों के दिमाग में फैक्ट्स डाल देता है उसी तरह से वो अपने आप को देखने लगते हैं और अपने आप को फॉलो करने लगते हैं। यदि समाज ने बोल दिया कि फेलियर की डेफिनेशन समाज ने कुछ दे दी, तो लोग जो हैं वो उसी समाज के दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, और यदि उसके मापदंडों पर वो खरे नहीं उतरते हैं तो वो अपने आप को फेलियर समझने लगेंगे। तो इस तरह से जो सोसाइटी है वह एक इंडिविजुअल को बहुत ही डीपली जो है वो इंटरलिंक्ड होती है, डीपली अफेक्टेड करती है। तो इमेजिनेशन की बात की जाए तो जो सक्सेस है और फेलर है, समाज ने जो भी डिसाइड कर दिया है उसके हिसाब से ही मैन और वुमेन जो हैं वो अपने आप को देखने लगते हैं। लेकिन यदि हम सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करने की बात करें तो हमें हिस्ट्री के एविडेंस और हिस्ट्री के हमें जो फैक्ट्स हैं उन्हें जानना ज़रूरी है, तभी हम सोशियोलॉजी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। पहले जो सोसाइटी थी, प्री मॉडर्न सोसाइटी थी, तो उसमें लोग जो थे वो एक जगह रह कर के अपना जीवन यापन नहीं करते थे। वो जहाँ उनको भोजन मिला, जहाँ उनकी आवश्यकताएं पूरी हुई, बेसिक नीड्स जो होती है वो फूड, क्लॉथ्स और हाउस, वो जहाँ भी उनको ये चीज़ें मिल जाती थी, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, वहाँ वो चले जाते थे और अपना जीवन करते थे। लेकिन जब मॉडर्न सोसाइटी आई तो उस सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लगी, तो जो पीजेंट्स थे वो वर्कर बन गए, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो इस तरह से जो सोसाइटी है उसमें चेंज होते रहते हैं। तो हिस्ट्री के जो एविडेंस होते हैं उसके बेसिस पर ही जो सोशियोलॉजी है उसे समझने की आवश्यकता होती है। नाउ pluralities and inequalities among societies. In the contemporary world, we belong to more than one society. We may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community, a religious or caste or tribal society. This diversity makes deciding which society we are talking about difficult. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले प्लूरैलिटी की बात की जाए तो यदि हम किसी बड़े जगह पर हैं, मान लीजिए हम जब पूरी दुनिया को बिलोंग कर रहे हैं
तब फिर हम क्या बताएंगे कि हाँ हम इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जब हम पूरी दुनिया के बीच में बैठे हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ मैं इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ। और जब हम इंडिया में ही हैं तो फिर हम अपने रीज़न को डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने रीज़न को बता सकते हैं, अपने कास्ट को बता सकते हैं, हमारा जो भी कल्चर है उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या हम किस जैसे मान लीजिए गुजरात में हैं तो बताएंगे कि हम गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह से फिर हम यदि इंडिया में हैं तो हम अपने जो बेसिक जो हमारे यहाँ की चीज़ें हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हो गया प्लूरलिटीज़। अब इनइक्वालिटी, हमारे समाज में आपको मालूम है कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ फैली हुई हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लिंग्विस्टिक और इथनिक दोनों तरह की कम्युनिटी हमारे पास है, हमारे देश में है। तो इनके धर्म है, इनके कास्ट है, जो इनके भी जो भी कल्चर है वो सारे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटीज़ है ये जो है वो सोसाइटी को ब्रॉड मैटर वो प्रोवाइड करवाते हैं। और ये मैटर जो है वो डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होते हुए हमें उस सभी को लेकर के स्टडी करना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होती है। नाउ इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज coined by Auguste Comte, a French philosopher and sociologist, in 1839. He is known as the father of sociology, as he is considered to be the first thinker who defined the scope of sociology as a discipline. Sociology is the youngest of all sciences. The word sociology is derived from the Latin word socius, meaning companion or associate, means society, and the Greek word logos, meaning study of science. Thus, the etymological meaning of sociology is the science of society. Sociology is the study of human social life, groups and societies. Its subject matter is our own behavior as social beings. Sociology is not the first subject to study society. This is evident in the writings of philosophers, religious teachers, and legislators of all civilizations and epochs. Thinking about our lives and about society is by no means confined to philosophers and social thinkers. All of us do have ideas about our own everyday life. The observations and idea that sociology as a discipline makes about society is different from both that of philosophical reflections and common sense. Sociology is thus the systematic or scientific study of human society and social behavior, from large scale institutions and mass culture to small groups and individual interaction. तो चिल्ड्रन सोशियोलॉजी है, जैसे कि हमने पहले बताया कि फादर ऑफ द सोशियोलॉजी कौन है, अगस्ट कॉम्टे हैं। और सोशियोलॉजी जो है वो सबसे यंगेस्ट साइंस कहलाता है। जैसे पहले बताया कि सोशियोलॉजी दो वर्ड सोशियस, लैटिन वर्ड सोशियस और ग्रीक वर्ड लोगोस से मिल करके बना है। तो इसका मतलब है कि जो सोशियोलॉजी है वह समाज के विषय में अध्ययन करने का साइंस है, विज्ञान है। सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन सोशल लाइफ, जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उन सब के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। एविडेंस हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। और कॉमन सेंस की बात की जाए तो कॉमन सेंस क्या होता है, जो बिलीफ चलते आ रहे हैं। मतलब जैसे कि सपोज़ मैं एग्जांपल दूं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब इसका कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो पहले से बिलीफ चलते आ रहे हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो जो पहले से चलते आ रहे हैं बिलीफ्स, उनको फॉलो करना, उनका कोई एविडेंस नहीं होता है और उनको फॉलो करते हैं, तो वो कॉमन सेंस नॉलेज होते हैं। और सोशियोलॉजी की बात की जाए तो सोशियोलॉजी जो है वो पूरे एविडेंस और पूरे जो आपके पास फैक्ट्स होंगे उन्हीं के बेस पर स्टडी उसकी की जाती है। तो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम न्यू टॉपिक सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग के बारे में स्टडी करेंगे।